अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इतवार को जब वो केरला की सरहद पर वाक़ पाठशाला पहुंचे, शानदार इस्तकबाल किया गया। केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खैर मकदम करने के लिए पहुंचे। वहीं केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट सुधाकरन, केरला असेंबली में अपोजिशन लीडर VD सत्यासन और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च पर मबनी है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते की रात, माफ कीजिएगा, इतवार की रात पाठशाला के करीब चेरुकुनम पहुंची। केरला में 11 से 29 सितंबर तक मिले कदम जुड़े वतन का नारा बुलंद करते हुए 19 रोजा यात्रा 7 अजला से गुजरेगी और 450 किलोमीटर का फासला तय करेगी। आज न्याटंकारा पहुंचने पर राहुल गांधी महात्मा गांधी के दोस्त डॉक्टर G रामचंद्रन के घर और रोटूकला माधवी मंदिर का दौरा करेंगे और वहां गांधी म्यूजियम का दौरा करने के लिए ब्रेक लेंगे। बाद में वो बलरामपुर के रिवायती बुनकरों से बातचीत करेंगे। Not only Congress, the people who believe our ideology, the people who believe that India is going to be a very, very troublesome period, is coming to us and waving to us. They are showing the support to this Jada. They know that, they believe that the current scenario, only one leader who can fight against these evil forces is Mr. Rahul Gandhi. Without care, without fear. Everywhere the government of India machinery is spreading the fear. Everywhere they are spreading the anger. Divisive forces are very much in upbeat under the leadership of this union government. And entire agencies are misusing to target the opposition voice. Even in media people, you know that. Even media people in the country, they were in jail for years, months, without any major reasons. After keeping 8 months or 9 months or 1 year, court is telling that it is not much a big case, it is an ordinary case. What is the point in that? This country designed BJP, this country is designed by BJP in such a way that there is no need of opposition voice. There is no need of democratic voice. In this current atmosphere, we think that this is the duty of Indian National Congress, come what may, to raise this issue with the support of the people. We are going to the people, we are approaching to the people. Not only Congress is, the people who... Because RSS BJP project is to divide India, the Congress project is to unite India. The BJP divides, the Congress unites. BJP is equal to uniformity, Congress is equal to unity. But the Congress has always believed that
India's unity is because of its diversity. Mr. Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, would always say, unity in diversity. Unity in diversity. Today, diversity is threatened, therefore unity is threatened. The BJP and the RSS reject India's diversity, and that is why unity is being weakened, and that is why we have launched Bharat Jodo Yatra. This is the background to the Bharat Jodo Yatra. This has not been done for any assembly election. It has not been done for 2024 Lok Sabha election. And Mr. Venugopal will explain to you how this Bharat Jodo Yatra is the Sanjeevani for the Congress. The Congress party organization, block level, district level, state level, are being strengthened through the Bharat Jodo Yatra. And such Bharat Jodo Yatras will be organized not just in the 12 states where this 3,570 kilometers is going, but also in the non-Yatra states like Assam, Odisha, West Bengal, Bihar, Jharkhand. There will be smaller yatras. Because RSS BJP project is to divide India, the Congress project is to unite India. The BJP divides, the Congress unites. कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतवार को कहा कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी भारत जोड़ो यात्रा से लोग पुरजोश हैं और अवाम लूटने में मसरूफ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से आज़ादी चाहती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से केरला में दाखिल हुई। समाज का हर तबका इस पदयात्रा से पुरजोश है। किसानों, मजदूरों, नौजवानों, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों समेत तमाम की शिरकत और जोश काबिले दीद है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम का पैगाम वाज़ेह है कि महंगाई, बेरोजगारी, माशी बहरान और तकसीम की सियासत खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने कहा है कि पिछले 3 महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में रसोई गैस की कीमतों में 13.33% की कमी आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ने रसोई गैस की कीमतों को कम करने के बारे में बात तक नहीं की। उन्होंने मुतालबा किया कि इंटरनेशनल मार्केट में रसोई गैस की कीमतों में आई गिरावट का फायदा मुल्क को मिले। नंबर 1, जब कच्चे तेल की कीमत पिछले 7 महीनों के 7 मंथ्स लोएस्ट, पिछले 7 महीनों के निम्नतम स्तर पर है और इन्फ्लेशन लगातार पिछले 7 महीनों में आरबीआई की अपर लिमिट 6% से ज्यादा है, तो उस दौरान कच्चे तेल की कीमत में जो घटत हुई है, जो डिप आई है, उसका बेनिफिट देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? इसका हमें जवाब चाहिए मोदी जी। क्या मोदी जी, हमारा दूसरा सवाल यह है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस सिर्फ इलेक्शन डेट से ही निर्धारित होती है, ग्लोबल रेट से नहीं होती है क्या? क्योंकि हमने तो आपको डायनेमिक प्राइसिंग बना के दिया था, जहां पे कच्चे तेल की कीमत का इंपैक्ट का प्रभाव पेट्रोल और डीजल की कीमत पर पड़ना चाहिए। तो जब डायनेमिक प्राइसिंग है देश में, तो लोगों को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? और तीसरी बात, क्यों माताओं, बहनों और देश की गृहिणियों को जब गैस सिलेंडर के दाम पिछले 3 महीनों में गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13.33% कम हुए हैं, क्यों हमारे देश में आज भी सिलेंडर 1053 से लेकर 1200 रुपए के बीच बिक रहा है? क्यों हम 13.33% उसका कम नहीं कर सकते? अर्थात इमीडिएटली हमारी मांग है कि 150 रुपए प्रति गैस सिलेंडर और 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 15 रुपए प्रति लीटर डीजल तुरंत प्रभाव से कम किए जाए। और ये कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ हम वो मांग रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों में जो कमी आई है उसका बेनिफिट हम मांग रहे हैं। क्यों आप उस बेनिफिट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, देश के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते? जब 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है,
जब इन्फ्लेशन लगातार पिछले 7 महीनों से आरबीआई की अपर रेंज से ज्यादा चल रहा है, उस समय भी आप कच्चे तेल की कीमत की कमी का इंपैक्ट लोगों को नहीं देना चाहते। ऐसी देश के लोगों से, मध्यम आय वर्गीय परिवारों से, निम्न आय वर्गीय परिवारों से मोदी जी आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम भी हो रही है, उसका बेनिफिट मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं देना चाहते। साथियों, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में अंग्रेजी में कहूंगा और फिर आपके सवाल लूंगा। रियल जीडीपी बढ़ नहीं रही और दूसरी जीडीपी दैट इज गैस, डीजल एंड पेट्रोल घट नहीं रही। नंबर 1, जब कच्चे तेल की कीमत पिछले 7 महीनों के 7 मंथ्स लोवेस्ट पिछले अगले महीने होने वाले कांग्रेस सदर के इंतखाबात से पहले पार्टी लीडरशिप ने इंतखाबी अमल में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। कांग्रेस कायद मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भरने वाले सभी पार्टी कायदीन को इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। ये लिस्ट पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास 20 सितंबर से मौजूद रहेगी। शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के 5 एमपीज ने पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के सदर मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर इंतखाबी अमल में ट्रांसपेरेंसी की मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस लीडरशिप ने फैसला लिया। दरअसल हाल के कुछ दिनों में कांग्रेस से लगातार बड़े कायदीन ने इस्तीफे दिए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी कायदीन की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी हाईकमान ने यह कदम उठाया। कांग्रेस सदर के इंतखाब 17 अक्टूबर को होना है। इसके लिए 24 से 30 सितंबर के बीच नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे। 5 कायदीन के नाम चिट्ठी में मधुसूदन मिस्त्री ने लिखा कि जो लीडर इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपनी रियासत के कांग्रेस ऑफिस में रियासत के 10 डेलीगेट्स की लिस्ट देख पाएंगे। जैसे ही नॉमिनेशन दाखिल हो जाएंगे और चीफ रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिए जाएंगे तो कायदीन को डेलीगेट्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि अगर कोई कायद अलग अलग रियासतों से 10 सपोर्टर्स का नॉमिनेशन पाना चाहते हैं तो उसे कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में उनके पास में 20 सितंबर के बाद सभी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट मिल जाएगी। नॉमिनेशन भरने के जो एस्पिरेंट्स है वो इस लिस्ट में से अपने 10 सपोर्टर्स चुनकर उनसे साइन कराकर उनका सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद 24 सितंबर तक आप नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। शराब घोटाले की जांच चल रही दिल्ली हुकूमत पर अब लो फ्लोर बसों की खरीदी में करप्शन का इल्जाम लगा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इतवार के रोज मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। शिकायत माफ कीजिएगा डीटीसी के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने 9 जून को दर्ज कराई थी। शिकायत में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर टेंडर खरीद और दिल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी DIMTS समिति के सदर के अपॉइंटमेंट में करप्शन का इल्जाम लगाया गया था। हालांकि पिछले साल शिकायत के बाद बस खरीद का टेंडर रद्द कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच के जवाब में कहा कि एलजी खुद करप्शन के कई संगीन इल्जामात का सामना कर रहे हैं। ध्यान हटाने के लिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। अब तक सीएम, डिप्टी सीएम और वजीर सेहत के खिलाफ हुई जांचों का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने अब चौथे वजीर के खिलाफ शिकायत की है। उन्हें पहले अपने खिलाफ करप्शन के इल्जामात का जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि ये बसें कभी नहीं खरीदी गई और टेंडर रद्द कर दिए गए। दिल्ली को और ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। इस आदमी को पता नहीं है कि वो किस पर साइन कर रहा है। दिल्ली का एलजी वीके सक्सेना एक महाभ्रष्ट व्यक्ति है। रोज सुबह उठ के नई जांच शुरू कर देता है जिसका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से इतने बौखलाए हुए हैं एलजी महोदय कि वो बिना सिर पैर की जांच शुरू करा देते हैं। जो काम, जो काले कारनामे उन्होंने खादी के अध्यक्ष रहते हुए किया, वही भ्रष्टाचार वो दिल्ली में करना चाहते हैं। हर टेंडर में उनको कमीशन चाहिए, हर टेंडर में उनको पैसा चाहिए। एलजी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है। ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का काम आप सीधे ठेकेदारों से बुला के तय करके कर लो। ये काम आम आदमी पार्टी के रहते हुए नहीं होगा। जो लूट और भ्रष्टाचार का धंधा आपने खादी में चलाया,
वो दिल्ली की सरकार में नहीं होगा। यहां आपका कमीशन और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इसलिए दिमाग भटकाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसका खुलासा मैंने खुद किया था, 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपने खाया है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की आपने लूट की है। और कैसे किया था? हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद खादी में काम करने वाले कामगारों का, 2.5 लाख कामगारों का पैसा आपने निकाल लिया। कैश में पेमेंट किया, अकाउंट से पेमेंट नहीं किया, आधार कार्ड से लिंक अकाउंट से पेमेंट नहीं किया। वो पैसा कहां गया? वो सैकड़ों करोड़ की लूट कहां गई? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई से, ईडी से? क्या जांच एजेंसियां जांच करके ऐसे महाभ्रष्ट एलजी को जेल नहीं भेजना चाहिए? जांच एजेंसियों को जांच करके बीके सक्सेना को जेल में डालना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। 1400 करोड़ रुपए का हेरफेर नोटबंदी के दौरान एलजी ने किया। खादी के अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख। कल रात को एक बड़े टीवी चैनल ने लोकसभा चुनाव पर एक सर्वे दिखाया। उस सर्वे में उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप 2024 में अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के लिए चुनौती मानते हैं? 63% लोगों ने कहा हां, 37% लोगों ने कहा नहीं। तो जो एक देशव्यापी सर्वे हुआ लोकसभा चुनाव पर, उसमें 63% लोगों ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2024 में चुनौती देने वाला नेता मानते हैं। कल रात को यह सर्वे आया तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी रात को नींद उड़ गई कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरा देश एक विकल्प के रूप में देख रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की पूरी देश चर्चा कर रहा है, तो मोदी जी इस बात से परेशान होगा। तो इसलिए आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे दिल्ली में एलजी साहब, वीके सक्सेना जी, सब लोग सुबह से फिर से एक्टिव हो गए कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कोई झूठा सच्चा आरोप जल्दी से लगा दिया जाए कि किसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकते हैं। कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद ने इतवार के रोज कहा कि पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 की वापसी के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। लिहाजा इस हवाले से मैं लोगों को गुमराह नहीं करूंगा, क्योंकि गुमराह कुन नारों से ही कश्मीर में 1 लाख लोगों की जानें गई हैं, 4 से 5 लाख बच्चे यतीम हुए और 5000 बेवाएं बनी हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मंसूखी पर 4 घंटे तक राज्यसभा में बहस की है, जो दुनिया के 200 ममालिक में देखी गई। उनके मुताबिक जो लोग ये कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने आर्टिकल 370 के हक में वोट दिया, वो पार्लिमानी उसूलों से परे हैं। लिहाजा जिन लोगों को पार्लियामेंट की इल्मियत ही नहीं, उन्हें उस पर बयान देने से गुरेज करना चाहिए। इन बातों का इजहार गुलाम नबी आज़ाद ने बारामूला में अवामी जलसे से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती, क्योंकि मैं गुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यहाँ के कुछ सियासतदान हैं जो ये कहते हैं कि कहते फिर रहे हैं कि आज़ाद साहब ने 370 पर बयान नहीं किया, वो दरअसल पार्लिमानी उसूलों से नाबलद है। गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट में छोड़े नहीं बुझता था, पार्लियामेंट चलाता। गुलाम नबी आज़ाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता।
अब बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो जिनके 35-35 पे तो ममता जी दिला सकती है, तो ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। तो पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है कि उसके हक में मुझसे मत मिलवाओ। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं बनी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अभी भी वो ऐसा नारा न दे जो न मेरे हाथ में है न आपके हाथ। पार्लियामेंट में 370 वापस लाने के लिए 2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए। 550 में से तकरीबन 350 लोकसभा में 550 में, मैं एक्चुअली नहीं बताता हूं, कोई गलती नहीं काले, लेकिन 350 के से 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही। अल्लाह करे, लेकिन जो मैं सियासत में रहा हूं, मेरी जिंदगी में 370। दिल्ली में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में महाराष्ट्र के अजीम लीडर और पार्टी के बानी रुकन शरद पवार को मुत्तफिका तौर पर एक बार फिर सदर मुंतखब किया गया। शरद पवार अगले 4 साल तक इस ओहदे पर फायद रहेंगे। महाराष्ट्र एनसीपी के चीफ तर्जुमान महेश भरत तापसे ने यह जानकारी दी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जारी एनसीपी के 2 रोजा कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए शरद पवार ने महंगाई, किसानों, खवातीन, सिक्योरिटी और चीन जैसे हिसास मसलों पर मरकज की मोदी हुकूमत को घेरते हुए निशाना बनाया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी का जिक्र करते हुए कहा कि हम मरकजी हुकूमत के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने अवाम से मुत्तहिद होकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की अपील की। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने मरकजी हुकूमत को महंगाई का हवाला देकर कोरोना बहरान में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन को बंद न करने का मुतालबा किया। मायावती ने इतवार के रोज कहा कि अगर मुफ्त राशन की तकसीम को बंद किया गया तो यह गरीबों के तय नाइंसाफी होगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुल्क की बड़ी आबादी, जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह के मसाइल से आज भी तकरीबन वैसी ही दुख व परेशान है जैसे कोरोना बहरान से ही झेलने को मजबूर थी। लिहाजा पीएम कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन बंद करके उनके मुंह का निवाला छीनना गैर मुनासिब वो नाइंसाफी पर मबनी होगा। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर अपने बयान से मरकज की मोदी हुकूमत को बेचैन कर दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्हें यह इशारा दिया गया था कि अगर वो मरकज के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे तो उन्हें नायब सदर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मेरा कहना ठीक नहीं, लेकिन मुझे इशारे मिले थे कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको नायब सदर बना देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जो महसूस करता हूं वो जरूर बोलता हूं। कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान की बुनियाद पर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि मोदी जी की रेवड़ियां हुकूमत के खिलाफ ना बोलो, मेरे काले कारनामों को मत खोलो, आपको नायब सदर बना देंगे। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा, मुझे मोदी हुकूमत की तरफ से पेशकश थी कि सच बोलना बंद करो, मैं नायब सदर बना दूंगा। वाह मोदी जी वाह, आप तो बड़े फनकार निकले। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान में काम करने वाली आबादी 2028 में चीन को पीछे छोड़ देगी। कल रात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम के 10वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सीतारमण ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के 2019 के आदाद और शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान के काम करने वाली आबादी 2028 में चीन को पीछे छोड़ देगी। उन्होंने कहा कि 2036 में हमारी
60% आबादी काम करने वाली आबादी तक पहुंच जाएगी और ये 2047 तक इसी सतह पर रहेगी। ऐसे इदारों से फारिगुल तहसील अफराद पैदावारी सलाहियत में अपना हिस्सा डालते हैं। उन्होंने इस हकीकत पर रोशनी डाली कि हिंदुस्तान की आला तालीम ने कंपनी के बेहतरीन एग्जीक्यूटिव में हिस्सा निभाया है और कंपनी के 58 आला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स असल में हिंदुस्तानी हैं और 11 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनकी मजमूई आमदनी 1 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन के टर्नओवर से ज्यादा है। रायपुर में 9 सितंबर को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की रैली हुई और इसमें काफी चोरियां हुई। इसका खुलासा एक शिकायत से हुआ। रायपुर के मोदापारा पुलिस स्टेशन ने बीजेपी कायद के 2,60,000 के 2 फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज की। पार्टी जराये के मुताबिक नड्डा की रैली के दिन कई बीजेपी कायदीन के पर्स मोबाइल चोरी कर लिए गए। बीजेपी कायद गौरीशंकर श्रीवास ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 2 फोन चोरी होने की शिकायत रायपुर पुलिस से की है। उन्हें अब इस मामले में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एक अहदेदार ने फोन बरामद होने की जानकारी दी है। ये इत्तलात है कि इस रैली में कई हाईफाई क्रिमिनल, कई चोर हैं जो दिल्ली से बाज़ाब्ता फ्लाइट में इस रैली में पहुंचे थे और उन्होंने सीनियर कायदीन के आईफोन और दीगर महंगी अशिया इसमें चोरी की थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ के होटल लेवाना आतिशज़दगी मामले की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद रियासती हुकूमत ने कसूरवार अहलकारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। तहकीकाती रिपोर्ट में 6 डिपार्टमेंट्स के 19 अफसरान को बराह रास्त कसूरवार करार दिया गया है। तहकीकात में लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी और फायर हुक्काम को गैर कानूनी तामीरात और हिफाजती मियारात को नजरअंदाज करते हुए होटल वक्तन फ़ौक़तन मंजूरी और NOC जारी करने का मुर्तकिब पाया गया। बिहार के सीवान जिले में महावीर अखाड़े के जुलूस के दौरान होने वाले फिरकावाराना सादमा आराई के बाद पुलिस ने एक 70 साल बुजुर्ग और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया। बिहार पुलिस पर इस मामले में तनकीद की जा रही है। बच्चे की उम्र 12-13 साल की बताई जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि बच्चे की उम्र 8 साल के करीब है। ताहम एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एतराफ़ कर लिया कि बच्चे की उम्र 14-15 साल है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस जब एक मस्जिद के पास से गुजरा था तो इसमें शामिल भगवादारी अफराद ने, जो मुबैना तौर पर लाठी डंडों से लैस थे, फिरकावाराना और इश्तियार अंगेज नारे लगाने शुरू कर दिए। ये पुराने बाजार में पेश आने वाले इस वाक़े के दौरान 2 ग्रुप आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी की जाने लगी। द प्रिंट ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी कि जुलूस में शामिल लोगों ने एक छोटी दुकान को भी नजर आतिश किया। पापुआ न्यू गिनी में इतवार के रोज ज़लज़ला आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिचर्ड स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 मापी गई। इसके पहले शुरुआती छोटे झटके भी आए। दारुल-हुकूमत पोर्ट मार्सबर्ग से ज़लज़ले का मरकज़ करीब 60 किलोमीटर दूर था। वहाँ का सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका काई नांदू है, यहाँ पर ज़लज़ले का मरकज़ था। इस इलाके में अक्सर ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले आते रहते हैं। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:51 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही कमाई के मामले में रिकॉर्ड बना रही है। जुमे के रोज रिलीज के दिन फिल्म का ग्लोबल कलेक्शन 75 करोड़ था। वहीं दूसरे दिन यानी हफ्ते के रोज फिल्म ने 85 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस तरह 2 दिन में ही फिल्म 160 करोड़ कमा चुकी है। कोरोना वबा के बाद ये पहली हिंदी फिल्म है जो 2 दिनों में ही कमाई के मामले में इस लेवल तक पहुंची है। इससे पहले भूल भुलैया 2 266 करोड़ कमा चुकी है। हालांकि ये फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन है। अयान मुखर्जी डायरेक्शन में बनी ब्रह्मास्त्र का बजट 410 करोड़ है। फिल्म का इंडिया में
फर्स्ट डे कलेक्शन 36 करोड़ का रहा, वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 6 करोड़ ज्यादा यानी 42 करोड़ की कमाई की। ऐसे में पिछले 6 फिल्मों में ब्रह्मास्त्र रणवीर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। वहीं ट्रेंड के मुताबिक अगर देखें तो फिल्म अपने पहले वीकेंड में 250 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। इस फिल्म में रणवीर, आलिया के अलावा नागार्जुन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और मौनी राय भी अहम रोल्स में दिख रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।